Hello, good morning, SIBCom students. So, till we were discussing about that GIS, Geographical Information System. Now, today I am going to discuss about the remote sensing new point that remote sensing is any technique for measuring, observing, or monitoring the process or object without physical touching the object under observation. Just like telescope, cameras, even eyesight are the types of remote sensing which you are probably familiar. That remote sensing, what is remote sensing? So, remote sensing is a technique which is used for measuring, observing the process without physically touching observation or without physically touching object. जैसे टेलीस्कोप है, कैमरास है और आई साइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दैट remote sensing satellites example. There are two classes of the remote sensor, the passive remote sensor and active remote sensor. So यहाँ पे आपको दो टाइप्स दिए गए हैं. तो पैसिव रिमोट सेंसर मतलब क्या? The passive remote sensors do not include the energy source on which measurement is based. The eye and optical telescopes are passive remote sensors. They depend on the external light sources. You cannot see at the night if the room lights are not turned on. तो पैसिव रिमोट सेंसेस उसको बताया गया है कि जो वो एनर्जी वो इंक्लूड नहीं करता है कि जिस पे उसने मापा ना हो, दैट मेजरमेंट उस पर किया ना गया हो. कि जैसे फॉर एग्जांपल आई है, दूसरा है टेलीस्कोप्स है, दे आर कॉल्ड पैसिव रिमोट सेंसर. कि उस पे हम बोलते हैं दे मीन्स वो एक्सटर्नल लाइट के सोर्सेज पे डिपेंडेंट है. अगर हमने रूम का लाइट बंद कर दिया तो हम ठीक से नहीं देख पाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं कि पैसिव रिमोट सेंसर. अभी हम एक्टिव रिमोट सेंसर. एक्टिव रिमोट सेंसर मतलब क्या? एक्टिव रिमोट सेंसिंग instruments includes the energy source on which measurement is based. Radar is widely known form of active remote sensing. Since the speed of radio waves and time delay between the emission and return are known, the distance to the target can be determined. LIDAR, that is light detection and ranging, is an optical analog for radar. The LiDARs emit the concentrated light beam onto the target and measure the energy reflected back to the LiDAR receipt. तो एक्टिव रिमोट सेंसर में, एक्टिव रिमोट सेंसर मतलब क्या? तो एक्टिव रिमोट सेंसर में उस एनर्जी को इंक्लूड किया जाता है जिस पे उसका मेजरमेंट नहीं करा जा सकता है. कि जैसे फॉर एग्जांपल राडर, तो राडर है उसको एक्टिव रिमोट सेंसिंग के तौर पे दिया जाता है. कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जिससे रेडियो बजता है उसका हम बोलते हैं कि रेडियो वेव्स का स्पीड कितना है. उसमें जैसे फॉर एग्जांपल उसमें टाइम डिले बिटवीन द टाइम ऑफ एमिशन एंड रिटर्न आर नोन. कि जैसे फॉर एग्जांपल एक घटना होने के बाद या एक सॉन्ग सुनने के बाद या दूसरा सॉन्ग जब आ जाता है तो उसका जो डिस्टेंस होता है तो उसको हम बोलते हैं लीडार. तो लीडार को क्या बोला जाता है? लाइट डिटेंशन एंड रेंजिंग. तो ये ऑप्टिकल ऑफ एनालॉग फॉर रेडार है. तो लीडार लीडार क्या करता है? तो लीडार क्या करता है कि जो बीम होता है, लाइट होता है, लेज़र होता है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है, उस पर टारगेट करता है और जितना भी एनर्जी उससे बैकअप एनर्जी आता है उस एनर्जी को वो मेज़र करता है, फिर वापस वो एनर्जी लीडर रिसीव करता है. तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव एक्टिव रिमोट सेंसिंग का उसको एग्जांपल बोल सकते हैं. अभी हम आगे बात करते हैं देन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी. सैटेलाइट टेक्नोलॉजी मतलब क्या? Satellite technology. The satellite technology is so ingrained within our modern society that most of the time we do not even notice it or think about it, how it impacts our daily lives. That users are so numerous and encompassing that even when we start to list them all and think about life without them, we can truly see how much is this technology has changed the way we live and work. Whenever you see the ATM machine or make a call from your mobile phone, check email through the Wi-Fi connection or plug in GPS unit into your car to that direction, satellite technology is making possible. From huge corporate offices in a large thriving city down
to the small town school, satellite plays a huge part in how things run and how we interact with the world. तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमारी मॉडर्न सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। हम उसको अपनी डेली लाइफ में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ना ही उसके बारे में हम कभी ज़्यादा सोचते हैं, ना उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एटीएम मशीन में जाते हैं, तुरंत पैसे निकालते हैं, पैसे भरते हैं, सो इतना इजी हो जाता है, वो भी सैटेलाइट की मदद से। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन पे हम अपना ईमेल चेक करें, वाईफाई अपना ईमेल चेक करें, ईमेल भेज रहे, सेंड कर रहे, रिसीव कर रहे, फिर व्हाट्सअप इस्तेमाल करें या दूसरा एप्लीकेशन इस्तेमाल करें या फ़ोन लगा रहे, तो ये सब ओनली हम बोलते हैं कि सैटेलाइट की वजह से। फिर हम बोलते हैं कि जीपीएस की वजह से, कि जीपीएस जो आप कार में लगाया जाता है तो आपको पता होगा कि वो डायरेक्शन बताए, तो ये सब कुछ पॉसिबल है ओनली ऑन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से। या हम बोलते हैं कि जैसे ह्यूज कॉरपोरेट ऑफिस में हम बोलते हैं कि जितना भी ह्यूज कॉरपोरेट ऑफिस होते हैं, ड्राइविंग सिटिंग डाउन टू द स्मॉल टाउन स्कूल, कि कॉरपोरेट से लेके स्मॉल स्कूल तक या स्मॉल टाउन स्कूल्स में भी जीपीएस का या हम बोलते हैं कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कॉरपोरेट में कैसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा कॉरपोरेट कंप्यूटराइज बेस्ड होता है, तो उसको चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जीपीएस और सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम आगे देखते हैं। जैसे a satellite is an object which has been placed into orbit by human endeavor। तो सैटेलाइट एक हम बोलते हैं कि उसको एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं कि ह्यूमन एंडीवेयर या ह्यूमन बिहेवियर थ्रू उसको ऑर्बिट की तरह उसमें बिठाया जाता है। Such objects are sometimes called artificial satellites to distinguish them from the natural satellites such as moon। कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बता सकते हैं कि जो नेचुरल सैटेलाइट से कहीं ज़्यादा अलग दिखाई देता है। जैसे हम बोलते हैं कि मून है, या हम बोलते हैं कि आपने जैसे एक मूवी देखा होगा मंगलयान, वैसे ही तो उसमें हमको ये पता चलता है कि जो हमने बनाया सैटेलाइट वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज स्पुतनिक 1 was launched by the Soviet Union in the 1957। कि वर्ल्ड का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसको हम स्पुतनिक 1, ये सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था 1957 में। Since then, the thousands of satellites have been launched into the orbit around the Earth। उसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए गए। Sometimes satellites, notably space station, have been launched in the parts and assembled into the orbit। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सैटेलाइट जब लॉन्च किया जाता है सब पार्ट्स में, तो वहाँ पे उसका हमें पर्टिकुलर स्पेस स्टेशन क्या है वो पता चलता है, और वो ऑर्बिट कितना है, उसका ऑर्बिट का साइज वगैरह या कितने डिस्टेंस है उसका हम पता लगा सकते हैं। That artificial satellites originate from more than 50 countries and have used the satellite launching capabilities of 10 nations। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मीन्स 50 कंट्रीज से भी ज़्यादा आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्रिएट किया गया है, मीन्स लॉन्च किए गए, और उसको लॉन्चिंग करने के लिए 10 नेशंस मीन्स 10 नेशंस उसको 10 नेशंस की उतनी कैपेबिलिटी है कि वो उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च कर सके। दैट few hundred satellites are presently operational as well as thousands of used satellites and satellite fragments orbit the earth as the space debris। कि कुछ सैटेलाइट ऑपरेशन की तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे कि ऐसे बहुत सारे जो सैटेलाइट हैं या सैटेलाइट फ्रेगमेंट्स हैं कि जो हम बोलते हैं कि ऑर्बिट या जो अर्थ के आसपास या अर्थ के आसपास घूमते रहता है जो ऑर्बिट, उसको स्पेस डेब्रिस की तरह दिखाया जाता है, उसको स्पेस डेब्रिस की तरह बताया जाता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे राउंड लगाती है या पृथ्वी जैसे सूर्य के पास राउंड लगाती है उसके ऑर्बिट पे, तो वो ऑर्बिट या कितने डिस्टेंस है वो हमको पता चलता है। वैसे ही सैटेलाइट फ्रेगमेंट्स जब लॉन्च किया जाता है तो वो हमें स्पेस हमको पता चलता है। अभी हम बात करते हैं सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पर्पसेस। सैटेलाइट हमें लार्ज नंबर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन टाइप्स ऑफ इंक्लूड मिलिट्री एंड सिविलियन और
observation satellites, communication satellites and navigation satellites, weather satellites and research satellite. तो सैटेलाइट्स के सैटेलाइट हर एक तरह के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसके पर्पजेज अलग अलग होते हैं। जैसे कॉमन टाइप्स के सैटेलाइट जैसे हम होते हैं कि मिलिट्री है, सिविलियन और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट है, वेदर सैटेलाइट है एंड रिसर्च सैटेलाइट है। तो अभी हम सैटेलाइट नेविगेशन के बारे में बात करते हैं। द सैटेलाइट नेविगेशन SATNAV, that system is the system of satellite that provide the autonomous geospatial positioning with the global coverage। तो ये सैटेलाइट नेविगेशन है। तो ये सैटेलाइट जो स्पेशल मीन्स जोग्राफिकल जो पोजिशनिंग सिस्टम है ग्लोब में या मैप में उसको कवर करने की कोशिश करता है कि कहाँ पे क्या आया हुआ है। इट अलाउज द स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर्स टू डिटरमाइन द लोकेशन, latitude, longitude and altitude and within few meters using time signals transmitted along the line of sight by the radio from the satellite। तो ये जो सैटेलाइट नेविगेशन है उसमें हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर्स भी लगाया जाता है, जिसकी वजह से लोकेशन हमको मालूम होता है कि जैसे पर लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है, अल्टीट्यूड कितना है, कितने मीटर्स दूरी है। और उसको ट्रांसमिट करने के लिए जैसे उसको ट्रांसमिट करने के लिए कि रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमको ये पता चलता है कि रिसीवर्स कैलकुलेट्स द प्राइसेस टाइम एज वेल एज द पोजीशन विच कैन बी यूज एज अ रेफरेंस फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो जब रिसीवर्स कैलकुलेट करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पोजीशन वो रिसीव करता है तो उसके हिसाब से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वहाँ पे किए जाते हैं। द सैटेलाइट सिस्टम विथ ग्लोब कवरेज may be termed a global navigation satellite system और GNSS। तो सैटेलाइट सिस्टम ग्लोब कवर जैसे सैटेलाइट सिस्टम है विद ग्लोब कवरेज मे बी टर्म एज, सैटेलाइट सिस्टम को ग्लोब कवरेज की तरह उसको एक नाम दिया गया है। तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम वो उनको एक नाम दिया गया है क्योंकि वो पूरा ग्लोब का हम बोलते हैं कि नेविगेशन दिखाता है। इसकी वजह से एज the of the October 2011 only United States Navstar global positioning system and Russian GLONASS were fully globally operational GNSS। तो यहाँ पे अक्टूबर 2011 में यूनाइटेड स्टेट मीन्स नवस्टार मीन्स नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ये उसका इस्तेमाल करके मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग जीपीएस का इस्तेमाल करके इस्तेमाल करके और रशियन ने ग्लोनास का इस्तेमाल करके ग्लोबली ऑपरेशनल जीएनएसएस मीन्स ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट उसका इस्तेमाल किया है। चाइना इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपांडिंग इट्स रीजनल Baidu navigation system into the global compass navigation system by 2020। ये ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट ने और रशिया ने अपना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम थ्रू अपना नेविगेशन रेडी किया है। अभी चाइना उस प्रोसेस में है जिसको उसने अपना नाम दिया है तो बायडू नेविगेशन सिस्टम जो 2020 तक वो लॉन्च करने वाले हैं। आगे बात करते हैं द यूरोपियन यूनियंस गैलीलियो पोजिशनिंग सिस्टम GNSS is initiated development phase that scheduled to be fully operational by 2020 at the earliest. Number of other countries including France, Japan and India are the process of developing regional navigation system। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन गैलीलियो पोजिशनिंग सिस्टम है GNSS उसको मीन्स जब उसकी शुरुआत किया गया या उसको डेवलपमेंट फेज में उसको लॉन्च किया गया या उसको फुल्ली ऑपरेशनल तब तक कभी उसको ऑपरेट किया जाएगा कि 2020 तक उसको ऑपरेट किया जाएगा। और नंबर ऑफ अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस, जापान और इंडिया ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग रीजनल नेविगेशन सिस्टम। तो उसके हिसाब से इंडिया, जापान और फ्रांस ऐसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी हम बोलते सॉरी ये जो कंट्रीज हैं वो भी अपना एक नेविगेशन सिस्टम रेडी कर दिए। अभी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इन द क्लाइमेट एंड वेदर फोरकास्टिंग इसका सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का क्लाइमेट और वेदर फोरकास्टिंग से क्या इस्तेमाल हो सकता है या क्या उसका संबंध हो सकता है वो हम देखने वाले हैं। द कंसेप्ट ऑफ वेदर फोरकास्टिंग इज अ वेरी एंशियंट वन that since the centuries
Humans have been making attempts to read and skies for any possible rainstorm and sunshine or climate change. कि हवामान या उसको हम बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज, जैसे हम बोलते हैं क्लाइमेट डिपार्टमेंट, या उसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि आज बारिश होने वाली, या स्टॉर्म आने वाला है, या सनशाइन या क्लाइमेट चेंज होना है, उसके हिसाब से हमें पता चलता है. अर्ली इंस्ट्रूमेंट, some of the instruments that were used to assess weather condition before the advance of technology were barometer, thermometer, hygrometer and anemometers and rain gauges. तो ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पहले जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता था वेदर कंडीशन को जानने के लिए, तो उसको बैरोमीटर से, थर्मामीटर से, हाइग्रोमीटर से, एनोमीटर से और रेन गैस से उसको नापा जाता था. द ओल्ड एंड बेसिक the old and new instrument. Basic concept remains the same. Data is now collected and processed at the high rate. The quality of data collection has considerably improved. The level and the rate of information transformed and communication has increased multi-fold, and it is now easier to issue and communicate the piece of critical information in the public or the private interest. तो ओल्ड एंड न्यू इंस्ट्रूमेंट की हम जब बात करते हैं, अ, तो ओल्ड एंड न्यू इंस्ट्रूमेंट की जब हम बात करते हैं, तो बेसिक कंसेप्ट क्या था? बेसिक कंसेप्ट वही का वही कि वेदर कंडीशन क्या है. फिर डाटा कलेक्ट किया जाता है कि ओल्ड इंस्ट्रूमेंट से भी डाटा कलेक्ट किया जाता था, और हाई इंस्ट्रूमेंट न्यू इंस्ट्रूमेंट से भी डाटा कलेक्ट किया जाता है, और जो कलेक्ट किया जो डाटा है उसका क्वालिटी इम्प्रूव किया जाता है. फिर होता है कि द लेवल एंड द रेट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म एंड कम्युनिकेशन हैज़ इंक्रीज मल्टीफोल्ड. कि जो डाटा कलेक्ट किया है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसका कम्युनिकेशन, हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन थ्रू उसको कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन उसको बढ़ाना है, तो उस तरफ से उसको इंक्रीज किया जाता है. देन इट इज़ नाउ ईजियर टू इश्यू एंड कम्युनिकेट द पीस ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक और प्राइवेट इंटरेस्ट. तो उसकी वजह से वो डाटा कलेक्ट होने के बावजूद उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, उसको किस तरह से कम्युनिकेट करना है, तो वो उस पर ध्यान दिया जाता है, और उसकी वजह से जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है वो भी पब्लिक और प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए वो क्या हो जाता है, एक ईजी वे में चला जाता है. देन आगे बात करते हैं वेदर द फोरकास्ट. That a climate prediction can be made only after taking into the account weather condition all over the world. कि प्रिडिक्शन में थोड़ा सा उसको चेंज करना, कि जब क्लाइमेट चेंज हो रहा हो, या हम बोलते हैं कि वेदर कंडीशन ऑल ओवर वर्ल्ड में थोड़ा सा चेंज रहा, उसका हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए. इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द वेदर ओनली अप टू 5 days इन एडवांस. मीन्स 5 दिन का वेदर कंडीशन कैसा होगा वो एडवांस में हमें पता चल जाता है बिकॉज ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी. ग्लोबली कलेक्टेड डाटा इज प्रोसेड एंड इन द सुपर कंप्यूटर्स एंड एनालाइज यूजिंग द मैथमेटिकल मॉडल्स. कि ग्लोबली जितना डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको सुपर कंप्यूटर्स में प्रोसेस किया जाता है, और उसके बाद उसको मैथमेटिकल मॉडल्स में उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है. आगे देखते हैं. जैसे हम बोलते हैं कि हम न्यूज़ में, आपको न्यूज़ होने के बाद या पर्टिकुलर सब इंफॉर्मेशन मिलने के बाद, जैसे हवामान एरिया का, या कहाँ पे बारिश होने वाला है, कहाँ पे हम साइक्लोन आने की संभावना है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये हमें वेदर कंडीशन सिर्फ हमें वेदर डिपार्टमेंट से विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमें पता चलता है. आगे हम देखते हैं मॉडर्न वेदर टेक्नोलॉजी. Modern day weather forecasting is highly dependent on the advanced technology based on the instruments and devices. Modern technology equipment include remote sensing system to measure the things that are more than 100 km away from the scope of radars. तो रिमोट सेंसिंग सिस्टम को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी तरह से इस्तेमाल किया जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल जो राडर होता है उससे भी, राडर हम बोलते हैं, जो राडर है उससे 100 किलोमीटर तक जितना भी डाटा वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, तो उसको किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, तो रिमोट सेंसिंग सिस्टम से हमें पता चलता है. फिर एडवांस राडर हमको ये पता चलता है. फिर इंस्ट्रूमेंटल बलून्स,
वेदर सैटेलाइट, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो वेपन्स है इसके हमसे पता चलता है कि वेदर कंडीशन कैसा होगा। देन कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर यूज्ड टू इंटरप्रेट द डाटा, प्रोसेस एंड मॉडल atmospheric processes, then make the prediction and the forecast, and convert the raw data into the maps and three dimensions model, and communicate the process information to mass media interferences इंटरफेसेस। तो ये इस तरह से हमें सैटेलाइट का इस्तेमाल किस तरह से करना है ये हमको पता चलता है। अभी वेदर सैटेलाइट, द टू टाइप्स ऑफ वेदर सैटेलाइट वॉच द वेदर, अभी उसको दो तरफ से दिखाया जाता है, वेदर सैटेलाइट को उसको नापा जाता है। तो सबसे पहला है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। Geostationary satellite orbit the same speed as the Earth and recover the data from around 35,000 किलोमीटर above the Earth। जियोस्टेशनरी जो सैटेलाइट है तो ऑर्बिट है, वो उसका स्पीड अर्थ मीन्स अर्थ को लेके और अर्थ से 35,000 किलोमीटर दूर तक वो उसका डाटा कलेक्ट कर सकता है। और पोलर ऑर्बिट है, ऑर्बिट सैटेलाइट है, यार यूज टू ऑब्टेन द क्लोजर व्यू एज दे ऑर्बिट एट द लोअर एल्टीट्यूड। तो पोलर ऑर्बिट क्या डाटा कलेक्ट करता है कि जो एल्टीट्यूड है, हम बोलते हैं कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, वो कितना लोअर है ऑर्बिट के पास, वो हमको डाटा पता चलता है। आगे देखते हैं द यूज ऑफ सैटेलाइट इन द क्लाइमेट डिजास्टर मैनेजमेंट। द uses of satellite in the climate disaster management are becoming more integral to reduce the reaction time and providing accurate information and to rescue and the disaster control operations। तो सैटेलाइट का इस्तेमाल, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्लाइमेट डिजास्टर मीन्स नेचुरल कैलेमिटीज़ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि वो एक इंटीग्रल पार्ट की तरह कि फॉर एग्जांपल टू रिड्यूस द रिएक्शन टाइम एंड प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, कि नेचुरल कैलेमिटीज़ को तो रोक नहीं सकते लेकिन उस पर क्या रिएक्ट करना है या उसको कितना हम बोलते कि उससे जो होने वाला डिज़ास्टर है उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, तब तक कितना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उस एरिया में पहुंचना है। तो उसका इस्तेमाल हम सैटेलाइट टेक्नो या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी शैल स्टॉप हियर, वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।